توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش، جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے رکھے، اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزوں، بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کی مینار کو بلند کیا۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے۔ حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟
फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो। मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे गर्दन में गमछा डालकर, और क्या कहा था, खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसे हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब, आए गले लगा लिया, सीने से सीना लगाया, और उसके बाद बाहर लेकर के गए और सहाबा से कहते हैं, सुनो मेरे साथियों, थोड़ी देर पहले मैं खिंजीर से ज्यादा बदतर इसको समझता था, लेकिन तुम गवाह है ना, आज मैं इसको अपने हकीकी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि मोहब्बत का पैमाना सिर्फ इश्क रसूल है, हुजूर की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये बात समझ करके चलो, जहां जहां से जालिमों ने मिटाने की कोशिश की है, रब तबारक व तआला ने वहां से इस्लाम के मीनार बुलंद की। एक बार ऐसा भी हुआ, अभी मैंने शुरू में कहा था, वो जुमला फिर से आपको दोहराता हूं। मेरे अजीजों, मक्का में एक दिन ऐसा भी आ गया कि एक पत्थर की मूरत बोलने लग गई, बुत बोलने लग गया, और बुत की पुजारियों के वारे नहीं आ रहे। होता है ना, कभी दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, वो कोई भी कहीं से पिला रहा है, कहीं से पाइप लगा रहा है, लेकिन ये भी अकीदत से जुड़ी हुई बात है। लोग इसको भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे जगह पर हमने सुना है कि आज भी कई मूर्त ऐसे हैं जो लड्डू भी खाते हैं, पेड़े भी खाते हैं। मक्का में ऐसा हुआ था। अरे लड्डू नहीं खा रही थी मूर्ति, दूध नहीं पी रही थी, सीधे बात कर रही थी। आप देख रहे हैं अहमद खान 1M। नहीं है, पत्थर की मूर्ति बात कर रही है, और वो भी हुजूर के खिलाफ। नौजुबिल्लाह, हुजूर के खिलाफ बात कर रही है। अब पुजारियों को इससे बड़ा क्या हो, सबसे बड़ी दलील थी, जो पूजा करने वाले थे सबको बुलाया, आओ आज हमारा खुदा सच्चा साबित हो गया। सबको जमा किया, आओ देखो पूरा सुने, देखा कितना मजा आता है। जो भी आता लोग जमा होते, वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ। मुआज़ल्लाह, हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी, पत्थर की मूरत। सब आए। अब सहाबा जो थे, ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई। ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए। अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज फैल जाए, और सब देखने के लिए आ गए, सब जमा हो गए। और उनकी तो ईद थी, हमारी तो ईद है, खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, अब नहीं बोल रहा था। हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी ये मूर्त। तो हुजूर ने उसको हाथ लगा कर कहा बोल लो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी, तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए, और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं, हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है। मेरे अजीजों, ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा कराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि क्या माजरा था।
बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था। जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हमें मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनार नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता, जिसको सोने की जंजीर से बादशाह पालता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर, और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां, हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़ कर निकल आया और भरे दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, चढ़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस कुत्ते की इस हरकत की वजह से सिर्फ डर नहीं बैठा था, उस दरबार में मौजूद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां से मिटाओगे, कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूँ, आज बहुत
बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती हैं। ऐ मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूँ, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तख्तुस्सरा में है, उसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का बाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है, युरीदूना लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूँ, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफ़ार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों, ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिक़ामत का वो मज़हर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे, जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, औजारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया। नाम मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम। जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना, वो कहाँ गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुझे कहाँ से बर्दाश्त करती? किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया। दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया, और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तुमने ये सोचा था कि मीडिया के ये दलाल तुम्हें हॉट कुर्सी पर बिठाकर इज्जत देंगे? अरे 4 दिन तुम्हें ये हॉट टॉपिक पर बिठाकर डिस्कस तो कर लेंगे, तुम्हारी आओ भगत कर लेंगे, लेकिन इनके दिन भी कितने हैं, इनके दिन भी कितने मौसम के दिन हैं। इनका हाल भी वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह है। हाँ, वो कुत्ता क्या सोचता है, पूरी गाड़ी मैं चला। ये सारी चीजों का हाल यही है। हुकूमत है तो उनको लगता है सब कुछ अपना है। अरे गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कुत्ता अकेला है। ये बात याद रखो, उनकी इज्जत बटोरने के लिए, उनकी जी हुजूरी के लिए तुमने धर्म बदल लिया, दीन बदल लिया, नाम बदल लिया, इज्जत वहां ढूंढते रहे। अरे नादान, एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया होता, एक बार हुजूर पाक को मोहब्बत से पुकारा होता, अल्लाह करीम पूरी कायनात के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देता।